must include, for example, This assessment must include, for example, first point, measures, needed to comply with, needed measures needed to comply with the health and safety and fire precautions. Second point, health, safety and fire precautions. Second point, assessment of the risk to young persons. Taking immaturity, immaturity and other factors into account. Third point, assessment of risk to new people and women. So risk assessment पहले क्या था कि risk assessment के 5 स्टेप्स क्या था, इसमें क्या है, पहले हमको आदत फाइंड आउट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कौन हार्म होगा, कैसे होगा, देन उसका रिस्क जितना होगा उसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी जो रिजल्ट फाइंडिंग हुआ उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसके बाद उसको भी और एक बार रिव्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना है। पहले मेथड्स नीडेड टू कंपेयर विद द हेल्थ एंड सेफ्टी और फायर प्रिकॉशन। जहाँ पे हेल्थ सेफ्टी और फायर का कुछ चांसेस है उसी जगह पे रिस्क असेसमेंट करके हमें प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट ऑफ द रिस्क टू यंग पीपल। जो यंग लोग काम करते हैं उनके लिए रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। एंड टेकिंग इनमेच्योरिटी एंड अदर फैक्टर्स इनटू अकाउंट। जो लोग इनमेच्योरिटी है उनको भी हम काम करने के लिए रहेंगे तो वहाँ पे भी रिस्क असेसमेंट करेंगे। फिर से असेसमेंट ऑफ रिस्क टू न्यू पीपल एंड वुमेन। जहाँ पे वुमेन एंड न्यू पीपल जो नया होकर आए हैं कंपनी को और न्यू जर्नी जो है उनके लिए भी रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो एलियास नहीं और एक तरीके को एलियास कोयास risk assessment can be carried out. Areas where risk assessment can be carried out.
for users of personal computers. For users of personal computers. Workstations for users of personal computers. Second point, assessment of noise levels. Assessment of noise levels. Assessment of noise levels. Third point, safety audit. Safety audit to identify CO2. Safety audit to identify potential hazards. Safety audit to identify potential hazards. बोलो क्या करते हैं? Safety audit to identify potential hazards conducted by experienced auditor. Experienced auditor. PERIENCE. Experienced auditor. Fourth point, safety audit to identify potential hazards conducted by experienced auditor. ठीक है. Fourth point, handling and lifting heavy load. 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 तो एरिया वेयर रिस्क असेसमेंट कैसे कैरिड आउट, कौन सी एरिया में हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए. वर्क स्टेशन फॉर यूजर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जहाँ पे कुछ लोग पर्सनल कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसी जगह पर हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए. असेसमेंट ऑफ नॉइज लेवल, जहाँ पे ज्यादा नॉइज हो रहा है और नॉइज लेवल को हम मेजर कर रहे हैं वहाँ पे हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए. सेफ्टी ऑडिट को आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड कंडक्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर. सेफ्टी ऑडिट भी करना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस ऑडिटर्स जो है उनसे जो सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए जहाँ पे कुछ रिस्क है और उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं और उसके लिए कुछ मेजर्स भी ले सकते हैं. उसके बाद हैंडलिंग एंड लिफ्टिंग हेवी लोड, जहाँ पे हेवी लोड हैंडलिंग होता है और लिफ्टिंग होता है वहाँ पे भी हमें सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद और एक पैराग्राफ में लिखो, following a risk assessment. Following a risk assessment. Following a risk assessment. Following a risk assessment. Employers must make arrangements. Employers must make arrangements. Make arrangements. Make arrangements to implement any necessary measures. To implement any necessary measures and arrange for the provision of appropriate information and training. Appropriate, APPOPRIATE, appropriate information and training. And training. तो अगर रिस्क असेसमेंट को एक एम्प्लॉयर फॉलो करते हैं तो उनको क्या होगा, फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट एम्प्लॉयर
the reporting of injuries, diseases, of injuries, diseases and dangerous occurrences dangerous occurrences regulations 1985 within bracket known as riddle उससे क्या है एक riddle RIDDOR क्या है ये the reporting of injury diseases and dangerous occurrences regulation ठीक है riddle bracket close require require employers to report any of the following to the SSE सभी कैपिटल लिखना है SSE to the SSE or the local council at once SSE or the local council at once इसके नीचे वाला पॉइंट में लिखो fatal accident second major injury or conditions which require medical treatment third dangerous occurrences second point major injury or conditions which require medical treatment third point dangerous occurrences so the reporting of injury diseases and dangerous occurrences regulation 1985 और जिसको हमने साथ में बोलते हैं क्या require employers to report any of the following to the SSE or the local council at once तो ये जो रिडर डिपार्टमेंट है इसी डिपार्टमेंट ये जो रिडर का रेगुलेशन है इसी रेगुलेशन की वाइज अगर फॉलोइंग में जो लिखा हुआ है उनमें से कुछ एक कंडीशन हमारी क्या कंपनी में हुआ तो एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए एसएससी डिपार्टमेंट और लोकल काउंसिल जो है उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए तो वो कंडीशन क्या है एक फाटल एक्सीडेंट अगर हुआ अगर एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक आदमी का डेथ हो गया तभी और मेजर इंजरी और कंडीशन व्हिच रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट एक मेजर एक्सीडेंट हो गया और मेजर कंडीशन